Hello, students of class 6. Today we start history chapter number 2, the earliest societies. In this chapter, we read about life of early humans, the Stone Age, discovery of fire, and rock painting. Life of early humans. Evolution means gradual development. To study of evolution of early human, we have to rely on archaeological sources as no written record are available for this period. Most of the information about this period come from fossils and artifacts such as tools, utensils, bones, and other remains that may be available for this period. जो हमारा ये पीरियड था, इस पीरियड्स के बारे में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, और इस पीरियड के बारे में हमें जो पता चलता है वो हमारे जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनसे पता चलता है, जैसे कि आपके टूल्स हो गए, यूटेंसिल्स, बोन्स एंड अदर रिमेन्स दैट may be available for this period. The Stone Age. The prehistoric period distinguished by the use of stone tools is described as the Stone Age. The Stone Age has been divided into three phases: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Paleo means old, Meso means middle, and Neo means new. जो हमारा स्टोन एज है, स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. पैलियो मीन्स ओल्ड, यानी कि जो हमारा सबसे पुराना जो टाइम था उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक. सेकंड मिसो, मिसो मीन्स मिडिल, यानी कि जो हमारा मिडिल स्टोन एज था उसको हम बोलते हैं मिसोलिथिक. एंड नियो, नियो मीन्स न्यू, यानी कि जो हमारी न्यू एज है उसको, जो हमारी स्टोन एज की न्यू एज थी उसको हमने नाम दिया नियोलिथिक. Okay, now we read about Paleolithic age. The first phase of the Stone Age is known as the Paleolithic period or the Old Stone Age. जो हमारा सबसे पहले जो स्टोन एज का जो पीरियड था उसको नाम दिया गया पैलियोलिथिक एज, और ये हमारा स्टोन एज का सबसे ओल्ड जो था पीरियड था. द पैलियोलिथिक पीरियड डेवलप्ड ड्यूरिंग द आइस एज एंड वाज स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट द एलिवरी plain of the Ganga and Indus. The Paleolithic period began around 5 lakh BCE and came to an end around 10,000 BCE. During this period, early humans sustained themselves through hunting, gathering. They wandered from place to place in search of food and lived in temporary settlements such as caves and at times under trees. इस टाइम पे जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स थे वो झुंड बनाकर हंटिंग यानी कि शिकार करते थे, और वो लोग गुफाओं में रहते थे या फिर वो पेड़ों के नीचे अपना घर बनाकर रहते थे. नाउ सेकंड इज मेसोलिथिक एज. द मेसोलिथिक एज इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज टू द न्यू स्टोन एज. मेसोलिथिक originated from two Greek words, mesio meaning middle and lithic meaning stone. The Mesolithic period lasted from 10,000 BCE till about 8,000 BCE. The crude tools from the Paleolithic period were replaced with sharp and pointed tools. जो हमारा ये पीरियड था, इस पीरियड में जो हमारे टूल्स थे उनमें कुछ चेंजेस हो गए थे, यानी कि जो हमारे पैलियोलिथिक एज में जो हमारे टूल्स थे उनमें कुछ चेंजेस हो गए थे. अब जो टूल्स बने थे उनमें वो हमारे क्या होते थे, शार्प होते थे और पॉइंटेड होते थे. सम टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर स्मॉलर इन साइज. दीज टाइनी स्टोन टूल्स which were not more than 5 centimeter in size were called microlith. Due to their small size, these stone tools could also be attracted to sticks or bones and be used to hunt well as dig the ground. ये जो हमारे टूल्स होते थे इनका जो साइज होता था वो लगभग 5 सेंटीमीटर होता था, और क्योंकि इनकी जो शेप होती थी वो नुकीली होती थी तो ये हमारे ग्राउंड को यानी कि खुदाई करने के काम भी आते थे. And the last age is Neolithic age. The Neolithic age is the third and final stage of the Stone Age. This period lasted from 8,000 BCE till about 4,000 BCE. The Neolithic period witnessed the beginning of the cultivation of crops and the domestication of animals. जो हमारा न्यूलिथिक एज का जो हमारा समय था उस समय पे लोगों ने जो कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था,
क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी थी। अर्ली ह्यूमंस इन न्यूलिथिक प्लेस न्यू सेटल्ड इन वन प्लेस रेदर देन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। और इस पीरियड में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमने के बजाय एक जगह पर रहकर उन्होंने जो है खेती करना सीख लिया था। Discovery of fire. Fire was the most significant discovery of early humans. Fire was discovered by accident while rubbing two stones. Early humans saw sparks flying. These sparks somehow came in contact with the dry, causing a fire. They got scared and ran away and waited for it to burn out. They eventually found out that animals were also scared of fire and did not came नियर इट। जो हमारा जो फायर का इन्वेंशन था वो भी एक चमत्कार था, एक्सीडेंट था। लोगों ने दो पत्थरों को आपस में, यानी कि जो दो स्टोन्स थे, दो स्टोन्स को आपस में जब उन्होंने रब किया तो उसमें से एक स्पार्क निकला और स्पार्क के कारण जो वहाँ पर सूखी पत्तियां पड़ी थी उनमें से आग निकल गई। उस आग को देखकर जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो डर कर भाग गए और उन्होंने छिप कर देखा कि जैसे वो भाग गए थे उस जो फायर थी, फायर को देखकर वहाँ पे जो एनिमल्स थे वो एनिमल्स भी भाग गए। ग्रेजुअली दे डिस्कवर्ड दैट दे कुड यूज फायर फॉर वेरियस पर्पज। तो जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने जो फायर थे, फायर को बहुत सारे पर्पज में यूज करना शुरू कर दिया। द फायर कुड गिव देम लाइट इन द नाइट, कीप देम वार्म एंड ऑल्सो बी यूज्ड टू कुक फूड। मोर सिग्निफिकेंट देन द डिस्कवरी of fire was how to early women learn to control fire and use it to their advantages। जो अर्ली वुमेन्स थे, अर्ली वुमेन्स ने लाइट को बहुत सारे तरीकों से यूज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने रात में लाइट के तरीके से खाना बनाने के लिए और अपने आप को वार्म करने के लिए जो लाइट थी उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, बाय स्टूडेंट्स।